Lord, sisters. Sister Sonali at the line. Yes, brother. Can you hear me? Yes, brother. Okay. So today we'll have continue with the topic of Mary, the mother of Jesus. और आज हम पिछले सप्ताह हमने जो सीखा था मरियम के जीवन से उसी को हम आगे जारी रखेंगे. So this is an opportunity for you all to share, also each one of us to share what we learned from the life of Mary. और हमारे सभी के पास एक अवसर होगा कि हम जो कुछ सीख रहे हैं मरियम के जीवन से वो हम बांट सकें एक दूसरे के साथ. I will share for a short time. Then, sisters, y'all, anybody has got something to share, you can open your mouth and share share what God has touched your life concerning the life of Mary. और मैं कुछ समय के लिए वचन से कुछ बात करूंगा. उसके बाद सभी के पास अवसर होगा कि जो कुछ हमने सीखा है, परमेश्वर ने हमें जिस बात से छुआ है उसके लिए हम एक दूसरे के साथ बांट सके. So we know that God chose Mary, who was a simple, humble girl from the town of Nazareth. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मरियम को चुना था जो बहुत ही साधारण सी एक स्त्री थी और नाजरत में रहती थी. She was only about 13 or 14 years old when she was called to have to be born, for Jesus to be born from her body. और वो सिर्फ 13 या 14 साल की रही होगी जब परमेश्वर की ओर से उसको बुलाहट आई थी कि यीशु मसीह की माँ होने के लिए. So it is quite possible that young sisters can be very God-fearing and humble in the sight of God. और ये मुमकिन है कि जो जवान जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो परमेश्वर के बुलाहट उनको हो सकती है और परमेश्वर के अच्छे प्रिय भक्त हो सकते हैं. वो She was humble and hardworking. वो बहुत ही नम्र और दीन और मेहनती लड़की थी. And when the angel Gabriel told her that she was going to become pregnant by the Holy Spirit, she was quite surprised. और जब जब्राइल स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि या तुम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, तो वो बहुत थोड़ा सा चौंक गई. But then the angel explained to her, and because of that, then she said, "Let it be done to me according to the will of God." फिर स्वर्गदूत ने उसको पूरा अच्छे से उसका वर्णन किया, समझाया. फिर वो ऐसा कहती है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए. Verse 38, that is Luke chapter 1 verse 38. लूका 1 उसका 38 वचन. The Mary said, "Behold, the bondslave of the Lord, be it done to me according to your word." And the angel departed from her. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. So all of us should learn to tell the Lord, "I am your bondslave. Whatever you want to do in my life, I will do, and I will bear everything." और हमें भी इस बात से ये सीखना चाहिए कि हम परमेश्वर की दासियां हैं और जो कुछ भी परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं हमें करना है. Then we see that because Mary obeyed and submitted, that she became the mother of Jesus Christ, and she could bring up the Lord in spite of all her the faults and the problems that she had. और क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी थी, जिससे परमेश्वर के पुत्र को वो जन्म दे पाई और बहुत सारी जो तकलीफें थी वो भी उसके लिए आगे रखी हुई थी, फिर भी उसने एक पुत्र को, यीशु मसीह को जन्म दिया. Before she was married also she became pregnant. और विवाह होने के पहले ही वो गर्भवती हो गई थी. So she must have faced a lot of mockery from the people and her neighbors and her relatives. और इसी के कारण बहुत सारा हंसी ठट्टा उसको सहना था, जो रिश्तेदारों के द्वारा, आस पड़ोसियों के द्वारा. But she had a very understanding husband, because the angel spoke to Joseph also about the same thing. पर उसके जो पति था वो बहुत ही समझदार था, क्योंकि जो स्वर्गदूत थे जो उसके पति से भी बात करी, यूसुफ से. And then we see that Jesus was born, and they had to go in a stable all the way from Nazareth to Bethlehem to give birth to Jesus. और फिर उसके बाद एक बाड़े में जाकर के नाजरत से लेकर बैतलहम तक एक बाड़े में जाकर के यीशु मसीह का जन्म हुआ.
because there was going to be a census. Sorry, brother. There was going to be a census. They were counting the number of people. Census. Matadan. No, Matadan, Matadan. What is it? हाँ, जनगणना, जनगणना। हाँ, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर वहाँ पर एक जनगणना हो रही थी। So Joseph was from the town of Bethlehem, and he had to go and register over there. और जो यूसुफ था वो बेथलेहम के गांव का था और वहाँ पर उनके नाम को दाखिल करवाना था। So when she was pregnant, almost to the reaching the 9th or 10th month, she had to travel all the way for so many miles, more than 100 miles to Bethlehem. और जब वो गर्भवती थी उसको बहुत चलना पड़ा, बहुत ही ज्यादा चलना पड़ा, शायद 8वां या 9वां महीना ही होगा और बहुत ही लंबी यात्रा उसको करनी पड़ी। And when they came to Bethlehem, they had no place to stay. They had no relatives. They had no place to stay, and the child was born in a stable. और जब वो बेथलेहम पहुंचे तो कोई भी जगह उनके पास रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार थे, इसलिए एक बाड़े में जाकर एक यीशु मसीह को जन्म देना पड़ा। So it was so inconvenient, but she never grumbled and murmured. We never hear that she was grumbling and murmuring at the difficult situation. पर वो कुड़कुड़ाई नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सुना, बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि वो कुड़कुड़ाई हो। उसने उस परिस्थितियों को भी उसने सह लिया। And because of that, what a wonderful situation! The angels, the shepherds came to greet her, and they were so happy to see that the child was born was the savior of the world. और फिर कितना अच्छा हुआ उसके साथ कि वहाँ के जो चरवाहे हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं और जगत का कर्ता यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ है। And Mary knew that this baby was the son of God. और वो ये जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। And it was such a happy occasion that she bore all the difficulties and problems along with Joseph, and they glorified the name of the Lord. और वो बहुत खुश थी, चाहे बहुत सारी परेशानियां यूसुफ और उस मरियम के जीवन में आ गई थी, पर वो उसको पाकर बहुत खुश थी, परमेश्वर को उसकी महिमा मिली। See, God only had arranged it that there was no vacancy in any of the hotels and any of the rooms. So God arranges a lot of difficult situations in our life, but we must learn to thank Him and praise Him and bless the name of the Lord instead of grumbling and complaining. और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी हमारे जीवन में भी, हमारे काम भी बहुत जगह ऐसे हैं कि रुक जाएंगे, पर इन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है और कुड़कुड़ाना नहीं है। So we see when Mary decided to obey the will of God, she went through a lot of troubles and problems in her life. और वैसे ही मरियम के साथ भी हुआ, उसको बहुत सारे दुख और तकलीफों से गुजरना पड़ा। When she started obeying God. जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू किया। And when they went to dedicate the baby in the temple, और जब वो अपने पुत्र को मंदिर में देने के लिए गई, there was this old man called Simeon in verse 34 of chapter 2 of Luke. लूका 2 उसका 34 वचन। And he's 34 and 35. He said, and Simeon blessed them and said to Mary, his mother, behold, the child is appointed for the fall and rise of many in Israel, and for a sign to be opposed. And a sword will pierce even your own soul, to the end that the thoughts of many hearts may be revealed. लूका 2 34 और 35 वचन। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से पार छिद जाएगा, इस पर बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। Yes. So this was Simeon. He prophesied and told Mary especially that this child is called, that many people will, because of this child, will rise up spiritually, other people will fall down. और शमौन जो था उसने ऐसा भविष्यवाणी की थी वहां पर कि ये जो बच्चा है इसको सॉरी सर, many people will rise spiritually and come closer to God because of this child, and many people in Israel will come down.
हाँ, बहुत से लोग होंगे जो ये जो यीशु मसीह को देखकर विश्वास में आएंगे और बहुत सारे जो ऐसे होंगे जो गिर जाएंगे। So, for example, we see the people who came up spiritually, people like Mary Magdalene and so many other prostitutes and poor people. God healed them, Jesus healed them and blessed them, and they came close to God. और हमने यहाँ पर बाइबल में काफी सारी बार देखा भी है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, चंगे हुए, बहुत सारी व्यभिचारिणी स्त्री थी जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाई और आत्मिक रूप से बढ़ गई। Even people like Mary and Martha and Lazarus and Zacchaeus, all these people, they came close to the Lord. जैसे कि मरियम थी, मार्था थी, जक्कई था, लाजरस था और मरियम मगदलीन थी। Or so many other, and all the disciples of Jesus Christ, they were ordinary fishermen and ordinary people. They came close to the Lord and had fellowship with Jesus Christ and came close to God. और बहुत सारे परमेश्वर के जो 12 चेले थे वो बहुत एक साधारण से कुछ मछुआरे ही थे, पर परमेश्वर के पास आ गए और आत्मिक रूप में बहुत बढ़ गए। But there are other people like the religious priests and the Pharisees and the teachers who were disobedient. They went far away from the Lord. और जो फरीसी थे और जो नहीं मानने वाले लोग थे, वो जो थे वो पीछे हट गए। And he said that this child, because of this child, a sword will pierce your own soul. और उसने ऐसा कहा कि इस पुत्र के कारण तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेद दिया जाएगा। So many people in Israel, many of the religious people were against the Lord Jesus Christ. और बहुत सारे जो इजरायली लोग थे वो भी जो थे वो यीशु मसीह के विरोध में थे। And Mary watched her own son dying on the cross when he died in the last moment, and she was so sad. और मरियम जो उसकी माता थी, उसने खुद ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखा जब वो मर She रहा must have था। been hardly 40 years old when she saw Jesus dying, and maybe hardly 50 years old when she saw Jesus dying on the cross. और वो कुछ 40 या 50 साल की रही होगी जब उसने देखा कि उसके खुद के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। Even though Jesus did good to everybody, so many people hated him. और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सबके साथ बहुत अच्छा किया, पर कुछ लोग थे वो उनसे बहुत नफरत करते थे। And that brought a real pain in her own soul. और इसलिए उनके जो मन में बहुत सारा ऐसा दुख भर गया था। So we see that in our lives, when you follow Jesus Christ, you will also face a lot of hardships. That's the meaning of a sword piercing your soul. और इसी का मतलब है कि तलवार से आर पार छिद जाना। All those who follow the Lord, you will find a lot of troubles and you will find a lot of sorrow in your own heart because other people are against you. और जितने लोग हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर दुख, तकलीफें, संकट आएंगे और इसी का मीनिंग, इसका ही यही बात है कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। Yeah, so but we must endure to the end. पर हमें अंत तक धीरज धरना है। And then Mary saw that Jesus was risen from the dead, and she came to fellowship with the Lord. And on the day of Pentecost, she also received the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तब भी मरियम ने देखा था और फिर जब पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा पाया था, तब मरियम ने भी पवित्र आत्मा को पाया था। So she was, even to endure the difficulties was a good thing for her because she received a blessing after that. अंत तक वो उसने धीरज धरा, इसलिए परमेश्वर ने की आशीष उस पर आई। And the wonderful thing is that Mary was called to look after the God's own son. और बहुत अच्छी जो बात है वो ये उसको मिली थी कि परमेश्वर के पुत्र का ख्याल जो था उसको रखना था। And that was such a privilege for any woman to look after God's own son and bring him up from a small child to the age of 30 years at home. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है किसी भी महिला के लिए कि परमेश्वर के स्वयं के पुत्र को उसको देखभाल करनी है और 30 वर्ष तक जब तक वो घर में थे तब तक उसने उनकी परवरिश करी। And we know Jesus never sinned even once. He was such a good child. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार भी पाप नहीं किया, वो बहुत ही अच्छे बेटे थे। And when they went to the temple with Joseph and Mary at the age of 12, Jesus stayed back in the temple. और जब वो 12 वर्ष के थे, यीशु मसीह जब यूसुफ और मरियम के साथ मंदिर में गए थे तो वो वहीं रुक गए। And then they found that when they had gone for
they were traveling back, then they discovered that Jesus was not there with them. और जब वो वापस लौट कर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनका जो बेटा है उनके साथ नहीं है। It says that in verse 46 of chapter 2, और लूका 2 में 46 वचन, it says, and it came about that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking questions. 46वां वचन, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। Mary knew that this boy was the Son of God, and she was a little bit careless in that she missed out. For 3 days, she didn't notice that Jesus was not there with her. और वो ये जानती थी, मरियम ये जानती थी कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसने लापरवाही दिखाई। 3 दिन तक उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह उसके साथ नहीं है। She should have seen it then that the day only, but 12, then she became very worried. Where is my son gone? He's only 12 years old. He's lost. और फिर उसके बाद उसको चिंता होती है कि वो तो मेरा जो पुत्र है वो तो सिर्फ 12 साल का है, वो कहाँ चला गया? She must have thought that yes, he may be with other friends and relatives, he may be doing some good, because he was always a very good boy. और उसको लगा कि कुछ रिश्तेदारों के यहाँ होगा या कुछ अच्छी चीजें बाहर कर रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी बातों को करता रहता था। But she delayed too often, and after 3 days only they came to know that they found Jesus. और बहुत ही उसने देरी कर दी और 3 दिन के बाद उसको पता चला कि वो मंदिर में है। Then she asked Jesus, why did you treat us like that? Why did you not tell us that you are not coming with us? और फिर मरियम ने अपने पुत्र यीशु से कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम यहीं पे रुक गए, तुम हमारे साथ आए क्यों नहीं? And Jesus said in verse 49 of chapter 2, why is it that you are looking for me? Did you not know that I should be in my father's house? और लूका 2:39वां वचन, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? So Jesus told us, see, my main interest to come in this world is to tell others about God's love and God's goodness, not about eating and drinking and talking here and there. So that the main purpose in our life should be to glorify the name of the Lord and to live for Jesus, to live for the glory of God. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो उद्देश्य है वो परमेश्वर की बात वचन को फैलाना है, परमेश्वर को के नाम को फैलाना है, ना कि इधर उधर की बातें करना या किसी के साथ बैठकर अपना समय बिताना। और हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले हमारे जीवन से। So, but anyway, after that, Jesus went along with them back to Nazareth and became in subjection to both Mary and Joseph. और जब वो नाजरत फिर से लौटे मरियम और यूसुफ के साथ, तब वो बहुत ही उनकी अधीनता में रहते थे अपने माता पिता की। Verse 51 it says, and he went down with them again to Nazareth, and he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. और 51वां वचन, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। So God has given us children to look after those who are married and children. We must bring them up in the fear of God and not leave them to all our relatives and friends to look after. और जितने लोग विवाहित हैं यहाँ पर, जिनके बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं इसीलिए ताकि हम परमेश्वर की डील डोल में उनको बढ़ाएं, ना कि रिश्तेदारों के घर में भेजें या फिर बातचीत उनसे करें। They are children of God. They are sanctified because we are believers, and we should look after them in the fear of God. और वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के भय में उनको बढ़ाना है। And Mary was a good example. She must have seen how Jesus was growing up in the Word of God and being an obedient boy, and she was very happy, knew that something wonderful is going to come out of the life of Jesus. और मरियम जो थी अपने बच्चे को जो डील परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर की डील डोल में बढ़ाती थी, और वो जानती थी इस बात को कि कुछ तो अद्भुत होने वाला है और कुछ तो होने वाला है अच्छा। And it is such a great privilege to have the Son of God in your own house. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का स्वयं का पुत्र हमारे घर पर हो। And then when Jesus was 30 years old, he left his house.
और जब यीशु मसीह 30 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने घर को छोड़ा। And then we know that he went to a wedding along with his wife, mother, and some other relatives, and also his disciples. और हम देखते हैं कि वो फिर एक शादी में जो है निमंत्रण उन्हें मिलता है, जहाँ पर अपने 12 चेलों के साथ और उनकी माता के साथ वो जाते हैं। And it says that Jesus in the book of John, chapter 2, Gospel of John, chapter 2. यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में। And Jesus and his disciples also were invited along with his mother. पहला वचन, और तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। Yes, and we know the problem happened. They were serving wine, and the wine got out, was over. और हम जानते हैं कि क्या घटना यहाँ पर घटी थी कि वहां पर दाखरस था और दाखरस जो था वो घट गया था, खत्म हो गया था। Then Jesus' mother, she must have been known the family of the bride and bridegroom very well. So she came and told Jesus, see, the wine has, they have no wine. और यीशु की जो माता थी वो दूल्हा दुल्हन के परिवार को जानती थी और उसने देखा कि दाखरस जो है वो घट गया है, खत्म हो गया है, तो उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को बताया कि देखो दाखरस अब नहीं रहा। Because in all our problems in the life in the last 30 years, Jesus did something. He didn't do any miracles, but he was very good at solving problems. और 30 वर्ष तक, जब तक यीशु मसीह 30 वर्ष तक नहीं थे, जब तक कोई भी चमत्कार उनके द्वारा नहीं गया हुआ था। हाँ, अच्छे काम उन्होंने बहुत किए थे, पर कोई भी चमत्कार उन्होंने नहीं किया था। So we also should be like that in our homes. We should be able to do good to our family members, so that they will remember us that yeah, this boy, this girl can do something good in our house. और जब हम भी जब घर पर रहते हैं, जब तक हम घर पे हैं, जब तक हमको भी एक अच्छे काम करना है, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हमें भी हमारे जो लोग हैं वो याद करें। Till then, Jesus did not do a single miracle. जबकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह जो था, उसने एक भी चमत्कार नहीं किया था। But Jesus replied to her, didn't call her mother. He said, "You woman, my time has not yet come." और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया है, नारी, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। I don't why should I listen to you? और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? Hello. Yes, brother. Should I listen to you? मुझे तुम्हारी क्यों सुनना चाहिए? Till then, he had always listened to her, but now after he left his house, he said, "No, now I am not going to take any commands and orders from you." और जब तक 30 वर्ष के थे, तब तक अपनी माता और पिता के अधीनता में रहते थे, पर जब नहीं रहते थे उनके साथ, तब उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी क्यों सुनना चाहिए। But his mother had confidence that he would do something. पर उनकी माता जो थी मरियम, उनको पूरा विश्वास था कि वो कुछ जरूर करेंगे। Verse 5, it says, his mother said to his servants, "Whatever he says to you, do it." और 5वें वचन में उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। Yes, this is what we should tell others also. Whatever the Lord says, please do. और हमें यही बात जो है, जो हमें दूसरों से भी कहनी है कि यीशु मसीह, परमेश्वर जो कुछ कहते हैं वही करना। If Jesus tells you to take baptism, take baptism. अगर यीशु मसीह कहते हैं कि बपतिस्मा लो, तो बपतिस्मा ले लो। If Jesus tells you to forgive the person, please forgive them. अगर यीशु मसीह, परमेश्वर कहते हैं कि माफ कर दो, तो माफ कर देना चाहिए। If Jesus tells you now you have returned those, you have taken these things from those people, go and return it back, return it back. अगर यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ये चीज किसी से ली थी, उसको वापस करो, तो वापस कर देना चाहिए। And if he tells you to go and help that person, go and help that person. और यीशु मसीह अगर कहें कि किसी व्यक्ति की जाके मदद करो, तो मदद करनी चाहिए। And she told the servants, please listen to what the Lord Jesus says, and then whatever he says, you do. और यीशु की माता ने उनसे कहा कि ये जो कुछ तुमसे कहे वही करना। And that good thing the servants heard, and whatever, then Jesus did a first miracle, a fantastic miracle in the wedding. और जो वहाँ के जो सेवक लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह की सुनी, और पहला चमत्कार जो बहुत ही अद्भुत चमत्कार था, यीशु मसीह के द्वारा किया गया। And that problem was completely solved.
और जो मुसीबत जो वहां पर आई थी वो पूरी तरीके से सुलझ गई। And this was the beginning of the first miracle that Jesus did. और ये पहला चमत्कार था तो यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। And that was because Mary had submitted to the will of God. और ये माता मरियम जो थी उन्होंने बताया था कि यीशु मसीह की अधीनता में आ जाओ, उसकी सुनो। Even though Jesus did not talk to her in a very respectful way as it is, but she submitted to it. She humbled herself. जबकि यीशु मसीह ने वहां पर उनसे आदर से बात नहीं की थी, पर फिर भी यीशु मसीह के अधीन थी, उन्होंने उसका आदर किया। So we have to always humble ourselves, no matter however other people talk to us. Even if other people do not talk according to our feelings, the son is not talking properly, and then we must humble ourselves. और हमें भी अपने आप को नम्र और दीन करना है। यदि कोई भी हमसे आदर से बात ना करे तो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। When we humble ourselves, God will guide us to say the right thing and do the right thing. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर जो है अपने आप हमें बताते हैं कि क्या सही है और वो हमें करना चाहिए। So Mary submitted herself to the will of God, to the will of Jesus Christ, and then the Lord Jesus did a wonderful miracle. और मरियम जो थी वो अधीनता में आ गई और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहती थी, फिर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार घर पे किया। And then Jesus started his ministry for 3.5 years. और फिर यीशु ने अपनी सेवकाई को 3.5 वर्ष तक किया। And then we see that how he had so much of opposition from all the religious people. और हम देखते हैं कि कितना जो विरोध था वो लोगों की ओर से उनकी तरफ आता था। And Jesus said, then even his brothers, he had 4 brothers and at least 2 sisters, they were also very doubtful about him. और उनके 4 भाई और शायद 2 बहनें थी, वो भी उन पे संदेह करती थी। In Matthew chapter 12 verse 48 to 50, you can read. हाँ, मत्ती ब्रदर Matthew chapter 12 verse 48 to 50. जी, मत्ती का 12वां अध्याय 48 to 50. हाँ, 48 से 50 वचन तक। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, ताकि क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई बहन और माता है। So here we see Jesus' mother, Mary, and children. When Jesus was having a meeting, they were outside the meeting and they wanted to talk to the Lord, talk to Jesus. और जब यीशु मसीह सभा में थे तब मरियम जो थी और उसके जो भाई बहन थे वो बाहर खड़े हुए थे और उससे बात करना चाह रहे थे। They did not believe, so Mary also got a bit backslidden. She just went away. She was listening to her other sons rather than to the Lord Jesus. और वो उस पर संदेह करते थे, यहाँ तक कि मरियम जो थी वो भी पीछे हट गई थी और संदेह करने लगी थी और बाकी दूसरे जो बेटे थे उनकी सुनती थी। Then the people said, see, your mother and your brothers are standing outside. और फिर कुछ लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि तुम्हारी माता और भाई बहन सब बाहर खड़े हैं। And Jesus said, who are my mother and brothers? Jesus pointed out to his own disciples who were sitting close to him and said, those who do the will of God, they are my brother and my sister and my mother. और फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि कौन है मेरे माता भाई और बहन? फिर अपने चेलों के तरफ इशारा करके कहा कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही है मेरे माता भाई और बहन। So we see that Jesus made a distinction between earthly relationships and spiritual relationships. और परमेश्वर ने यहाँ पर अंतर बताया जो हमारे सांसारिक जो रिश्तेदार हैं और जो आत्मिक रिश्तेदार हैं उनके बीच में। And Mary and his brothers and his children must have got quite insulted. और जो मरियम थी और उसके जो बेटे बेटियां थी वो उनका आदर नहीं हुआ वहां पर। But we see that later on when Jesus was crucified, Mary humbled herself and came to the cross.
और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब फिर से मरियम जो थी वो नम्र हुई और यीशु मसीह के पास लौट कर आई। And she also did the will of God, and she became the brother and mother of and sister, mother of Jesus Christ in a spiritual sense. और फिर वहां पर ये मरियम की जो माता थी वो आत्मिक रूप से यीशु मसीह की माँ बनी। And even our other children like James and Jude, they also got a revelation of Jesus Christ, and they were there on the day of Pentecost and received the Holy Spirit. और जो दूसरे जो भाई थे, उन्होंने भी यीशु मसीह को अपनाया और पवित्र आत्मा पाया। So whenever there is a problem in our own life, in our relationship, our spiritual relationship, if we set our relationship right with the Lord, we'll have a good relationship in our family. और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ बुरे आपस में मतभेद हो रहे हैं, तो हमें अपने मतभेदों को हटाना चाहिए, हमें एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। The first thing is that we must set our life right before the sight of God. और सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने जीवन को सही करना है यीशु मसीह की नजरों के सामने। Then you will become the sister of Jesus and or the mother of Jesus. फिर हम बन जाएंगे यीशु मसीह की बहन या फिर माता। And all of us will be brothers and sisters in Christ. और हम जब जितने भी हम हैं वो यीशु मसीह में हम अपने एक दूसरे के भाई बहन हैं। This is what Jesus was teaching his own mother and his own relatives, his brothers and sisters, that you must do the will of God, then you will become a child of God and you'll come into a relationship with one another. और यही यीशु मसीह ने अपने सब माता भाई और बहनों को सिखाया कि यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए, तब उसके बेटे बेटियां हो जाओगे। Many Roman Catholics, they believe that Jesus, you have to pray to Mary. और बहुत सारे रोमन कैथोलिक जो लोग होते हैं वो यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते हुए मरियम से प्रार्थना करते हैं। But Jesus said that Jesus is the mediator. We can go directly to Jesus at all times. We don't have to go through any human being. और यीशु मसीह जो है वो हमारी ये पिता के बीच में हमारी बिचवाई है, हमें कोई व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। She also required Jesus to forgive her sins. और यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करें। No, Mary also required that Jesus would forgive her sins. हाँ, मरियम भी एक ऐसी महिला जी थी, उसको पापों की क्षमा की जरूरत थी यीशु मसीह के द्वारा। She was also a sinner. वो भी एक पापी स्त्री थी। And when she confessed her sins and came to the Lord Jesus Christ, Jesus filled her with the Holy Spirit. और जब उसने पापों का अंगीकार किया, अपने मुंह से अपने पापों को मान लिया, तब परमेश्वर ने उसको अपनी पवित्र आत्मा से भरा। She was a very godly woman, but she was just like you and me, brothers and sisters in Christ. और वो एक अच्छी आत्मिक स्त्री तो थी, पर वो हमारे जैसे ही थी। Many Roman Catholics, they believe that we must pray to Mary, so that Mary will tell all your requests to the Lord Jesus. और बहुत सारे रोमन कैथोलिक जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमें मरियम से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर मरियम जो है वो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाएगी। That is wrong according to the Bible. We are all brothers and sisters in Christ because we obey the Lord. और ये बात गलत है बाइबल के हिसाब से। हमें सीधा हम यीशु मसीह के संतान हैं और हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। So even if in all our wrong things, suppose we do a wrong thing, we can come back to the Lord, as Mary came back to Jesus and confessed her need for the Lord. God accepted her. So God loves each one of us in our families. और हमें भी यीशु मसीह के पास वापस आ जाना चाहिए। यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमें अंगीकार करना चाहिए, जैसे मरियम ने किया था। So because she had a very humble attitude, she received the Holy Spirit. और क्योंकि वो बहुत दीन और नम्र हो गई थी, इसलिए उसने पवित्र आत्मा पाया। So my dear sisters, we must always think about the life of Mary and how she lived, and what a privilege it is for her to serve Christ. और हमें यही सीखना है बहनों की, कैसे हमने मरियम के जीवन से जो कुछ सीखा है कि परमेश्वर के अधीन हो गई और परमेश्वर बहुत बड़ा सौभाग्य उसने पाया। So how can you sisters serve Christ? और आप बहनें कैसे परमेश्वर को स्तुति महिमा करती हैं? How can we serve Christ?
प्रभु यीशु की मसीह की सेवा, कैसे सेवा करती हैं? this is because we are the brothers and sisters in the church, the Christians. When we serve one another, we are serving Christ. और हम यीशु मसीह में भाई बहन हैं एक दूसरे के। जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, मतलब हम मसीह की सेवा करते हैं। So, brothers and sisters, you have the privilege of praying for brothers and sisters in Christ, your brothers and sisters in Christ, for helping them in any way. So, this is a wonderful opportunity that you can serve Christ. और हम बहनों भाइयों, हमारे पास बहुत सारे एक बड़ा मौका होता है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, या किसी भी तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकें, ताकि हम अब एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा यीशु मसीह की सेवा करेंगे। Every child of God who loves the Lord is belongs to Christ. और हर एक जो बच्चे हैं, अगर वो परमेश्वर का भाई मानते हैं, तो परमेश्वर की संतान है। So, dear brothers, dear sisters, it is a privilege for us to serve Christ in our brothers and sisters in any way, and thus glorify the name of the Lord. और हमारे पास एक बड़ा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे की सेवा करें और परमेश्वर को महिमा मिले। The least service, the most hidden service that you can do is to pray. और बहुत ही गुप्त जो सेवा है हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, वो है प्रार्थना करना। Be filled with the Holy Spirit and start praying for one another. पवित्र आत्मा से भर जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। While you're doing your work in the kitchen, or while you're thinking about it, let your thoughts be upon the Lord and on the brothers and sisters that you have seen. और जब भी हम या तो खाना बना रहे हो घर पर या कुछ काम कर रहे हो, तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए और हमें हमारे भाई बहनों के बारे में सोचना है और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उस टाइम पर। And ask God to help them and fill them with the Holy Spirit. हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनकी मदद कीजिए, उनको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। And they should be free from the power of sin and become pure and holy in the sight of God. और वो हर एक पाप से छूट जाएं और परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर है। And thus we will serve Christ, just as Mary served Christ. और ऐसे ही परमेश्वर की हम यीशु मसीह की सेवा कर पाएंगे जैसे मरियम ने सेवा की। So, dear sisters, we have a lot of things to learn from the life of Mary. और बहुत सारी बातें हैं जो हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं। Let us be humble of heart. अपने मन में, अपने हृदय में नम्र बने। And believe that God can do everything, great miracles in our life if we follow Him. और हमें विश्वास करना है कि यदि हम परमेश्वर का पीछा करते हैं तो बड़े बड़े जो कार्य है हमारे जीवन में हो सकते हैं। Amen. Amen. So, anybody has got something to share regarding the life of Mary that touched you? Please share. Open your mouth and जरा बात कर लीजिए। आप प्रभु ने आपने क्या सीखा मरियम के जीवन से, ये आप भी जरा शेयरिंग कर सकते हैं कि मरियम हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। So it's a good example for all of us. So anybody can start. कोई भी सिस्टर, कोई भी शुरू करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना भी ले लीजिए। प्रभु हमको ज्यादा सीख देते हैं मरियम के जीवन से, और वचन भी पढ़ने से मरियम के बारे में हम लोग ज्यादा सीखते हैं। तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मरियम के जीवन से जो पिछले पिछले हफ्ते और आज के दिन भी हमें सीखने मिला। और मरियम के जीवन में बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो कितने नम्र और परमेश्वर की अधीनता में रहने वाली स्त्री थी, और परमेश्वर ने जो भी कहा उसके अधीन थी। वो परमेश्वर पर विश्वास रखकर चल रही थी। जबकि वो जब मैं देखती हूँ कि उनके जीवन में जब गर्भवती थी और पूरा महीना हो गया था, उनको इतना ट्रैवलिंग करना था और उनको सही जगह भी नहीं मिला। परिस्थिति इतनी खराब थी कि उनको सही जगह पर जाके बच्चा जन्म देने भी नहीं हुआ। तो भी उस परिस्थिति में भी उसने कुड़कुड़ाई नहीं की, कोई शिकायत नहीं किया। मैंने वचन में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि बहुत ही शांति, तभी भी उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा, परमेश्वर पर विश्वास अपना धरे रखा कि परमेश्वर जो भी है उसके जीवन में जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और वहां पे भी वो बहुत ही नम्रता से सारी बातों को, बहुत ही दीनता से सारी बातों को सहकर सारे परमेश्वर की अधीनता में होकर करती है। आगे जाकर जब
यीशु मसीह जब बड़े होने के बाद जब काना के जो विवाह का जगह था वहाँ पे दाखमधु खत्म होने के समय पे जहाँ पर मरियम आके यीशु से कहती हैं कि दाखमधु खत्म हो गया है, वहाँ पे उनके बेटे के मुंह से ऐसे लाइक माँ से कोई ऐसा बात नहीं करता नॉर्मल रूप में, परंतु बेटे के मुंह से ऐसे सुनने के बावजूद भी उन्होंने बुरा नहीं माना। वहां पे भी वो बहुत ही अपने आप को नम्र दीन करती है और यीशु मसीह जो भी बोले वो सुन के लेती है, वहां पे कुछ भी नहीं बोलती है और वहां के उनके सेवकों को, वहां पे जो काम करने वालों को बोल देती है कि यीशु ने जो कहा है, यीशु जो भी करेंगे वो करना करके। तो वहां पे भी मरियम की जो नम्रता है वो आज्ञा की अधीनता में जो रहने का स्वभाव है, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र है, तो परमेश्वर के ही काम को उसके आगे बढ़ाना है, उसने पहले से जान लिया था, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उसने सारी बातों को अपने हृदय में बहुत ही संभाल के रखा, उसने वो भूली नहीं, सारी बातों को वो संभाल के रखती थी और उसको याद रहते थे सारी बात, इसलिए वो हर परिस्थिति में वो अपने आप को नम्र रख पाती थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे भी जीवन में हमें भी मुझे सीखने मिला कि मुझे भी अपने जीवन में भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई हमें कुछ भी ना क्यों ना बोले, हमारी जो परिस्थिति कहीं खराब भी हो जाए, तो भी हमें कोई भी कुड़कुड़ाई या शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना चाहिए। नम्र और दीन एक स्वभाव हमारा हमेशा रहना चाहिए मरियम की तरह, क्योंकि वो नम्र और दीन थी, इसीलिए ही परमेश्वर ने उसको चुना, ताकि परमेश्वर के जो पुत्र यीशु मसीह है वो उनके द्वारा उत्पन्न हो। तो मुझे यही सीखने मिला अपने उनके जीवन से कि हमें भी उनकी तरह बहुत ही अपने जीवन में नम्र होना चाहिए और दीन होना चाहिए, और जो भी अधिकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखे हैं, परमेश्वर की अधीनता में रहना, अपने जो पति है तो पति की अधीनता में रहना, अगर माता पिता है तो उनकी अधीनता में रहना, और अपने बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाना परमेश्वर के भय में। तो ये सारी बातें जो है मरियम के जीवन के द्वारा मुझे सीखने मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Amen. और कोई सिस्टर्स भी हैं? परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे दिनों से ऐसा हम बहुत सारे दिनों से ऐसा सीखते आ रहे हैं कि जो नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर, जो और मेहनती होते हैं परमेश्वर उनके साथ होते हैं। और पुराने नियम में भी से लेकर अभी तक जितनी भी महिलाओं के बारे में सीखा है जो अच्छी व्यवहार करती है, यदि वो मेहनती होती है और नम्र और दीन होती है तो परमेश्वर जो है जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब संडे को भी जब एक मीटिंग थी, ब्रदर प्रकाशन जी आए थे, तब मैं उनकी ऐसे मतलब मनन कर रही थी, तब मैंने एक वचन मेरे मन में आया, 2 कुरिन्थियों का 11, मैं आपके साथ एक बार बांटती हूँ। वो बोल रहे थे कि जो नम्रता, दीनता और यीशु मसीह का जो व्यवहार है वो हमारा गहना है, नम्रता और दीनता भी हमारा गहना है। और यहाँ पर मैंने देखा 2 कुरिन्थियों 11 उसका 2 और 3 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मतलब मैं ऐसे मनन कर रही थी कि क्योंकि ब्रदर ने भी बताया था कि शैतान लगा ही रहता है इस बात पर कि वो कैसे हमारा सुख चैन ले ले और उस बाड़े को तोड़ दे। और वैसे ही जैसे मरियम ने भी यहाँ पर किया, जब उसने अपने दूसरे बेटों की जब वो बात को सुनने लग गई तो वो अपना गहना उतार दिया, तब यीशु मसीह ने उनका इनकार कर दिया कि कोई मेरे माता बहन तो यही है जो मेरे समीप रहता है। तो मुझे ये सीखने को मिला है कि मुझे मेरे गहने पहनकर ही रखना है, मतलब मेरा यीशु मसीह का जो मुझे घमंड नहीं करना है, मुझे नम्र और दीन रहना है, मुझे परमेश्वर की अधीनता में रहना है, और जितने पाप मेरे जीवन में हो जाते हैं उनसे पर मुझे जय पानी यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। खुद से तो नहीं मैं पा सकती हूँ, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें पानी है, क्योंकि हमारी बात हम चल चुकी है यीशु मसीह के साथ, और ताकि हम पवित्र कुमारी की तरह हमें मसीह को सौंप दे, ऐसा मतलब हमें पवित्र कुमारी बनकर रहना है यीशु मसीह के लिए, और हमें कोई भी भड़काए नहीं, और शैतान हमारे जीवन में सेंध लगाता ही रहेगा, और आखिरी सांस तक हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती रहेंगी, पर हमें अपना गहना उतारना नहीं है, दीनता, नम्रता, पवित्रता
हमें घमंडीपना और हमें मेहनती भी रहना है। और मेहनती मैं पहले सोचती थी मेहनती रहना भी एक अच्छा एक गुण है, मतलब मुझे पता नहीं था, पर यहाँ पर मैंने जब सीखा कि दीनता, नम्रता और मेहनती होते हैं तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। आमीन। आमीन। और कोई है शेयर करने के लिए? 2 जन शेयर कर सकते हैं बीच ब्रीफली? एनीबॉडी? So Manisha? I praise and thank the Lord for the message. What I learned from the life of Mary, one thing is that she had the holy fear of God in her heart. She feared the Lord, and among all women, God saw that she had a gentle and a humble spirit. That is what inspires me also, that it is very important to have the gentleness in our spirit and to have the humble attitude which Mary had. Second thing is that she acknowledged in Luke 1:55, when we read 54 and 55, Mary acknowledged and she proclaimed that he has helped his servant Israel and remembered to be merciful, for he has made this promise to our ancestors, to Abraham and his children. So here Mary acknowledged that Jesus, like he's a savior, and savior is going to be born through her. She acknowledged the truth and the promises of God. And one more thing I would like to say is that even I have been brought up in a Catholic family since childhood. And from childhood, I was always taught to pray to Mary and, to do all sorts of veneration and everything, and I was very staunch in that. And when I was born again, and when the Lord opened my eyes, he showed me the scriptures, and he told me that there is no other God, but it is only God and our Lord Jesus Christ who intervenes on our behalf. And I thank and praise the Lord for this. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Anybody else? So, dear sisters, we praise the Lord. प्रभु का वचन हम लोग सुना है, और दीनता, नम्रता और प्रभु की आभार मानना चाहिए। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हम गलती करेंगे भी, प्रभु के पास हमेशा जा सकते हैं कि प्रभु ही हमारा तारनहारा देने वाला है, उद्धार करने वाला है, हमको उठाएंगे। He will lift us up. So let us worship and praise the Lord every day. And God loves people who are humble, because Jesus also is very humble. So हम भी नम्रता से चलना चाहिए, नम्रता का गहना पहनना चाहिए। All the days of our life, घमंड हमारे पास आसपास सब लोग घमंड है, हमारा अंदर भी घमंड है। सो हमको हमेशा नम्र होकर रहना है, नहीं तो हम प्रभु से दूर जाएंगे। So let us pray and ask the Lord to bless us and our meetings and also our families also. प्रभु परमेश्वर, समय आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपसे बात किया। प्रभु जी, हमको मनन करने के लिए आपके वचन के ऊपर हमको ताकत दे दे प्रभु जी, और हमारा परिवार को, अपना व्यक्तिगत जीवन को भी, हमारा कलीसिया को भी आशीष दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरे, ताकि हम आपके साथ चले। ब्लेस द मीटिंग लॉर्ड एंड ब्लेस आवर फैमिलीज। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Thank you sisters, God bless you, and we'll see you tomorrow. Tomorrow is Friday is the prayer meeting, कल at 8:45 PM वो meeting होगा। Thank you.